फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस कैट 2020 स्लॉट 1 क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कशन। दोस्तों, कैट 2021 के तीन स्लॉट के वीडियोस हम आपके लिए ऑलरेडी बना चुके हैं। नाउ वी आर ब्रिंगिंग दिस कैट 2020। नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग 5 questions in one video, we are doing 10 questions in a video. So video may be longish, but it is, you can say, nonetheless it is very important. Okay, let me start to talk about all this, you can say, questions one by one. दोस्तों, अगर आप रेगुलरली, you can say, इन कंटेंट को हमारे साथ सीखेंगे, ठीक है, और अगर आप सही तरीके से उसको अप्रोच करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेन लॉट ऑफ बेनिफिट. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस, यू कैन से, मैथमेटिकल set of questions, we are trying to give you background of some theoretical aspect and we are solving a problem in front of us. Okay, so as a mathematician we have to see what is the problem in front of us and how do we do it. Okay, so let's say first question. It is saying how many 3-digit numbers are there for which the product of their digits is more than 2 and but less than 7. So what is the problem here? The problem is very simple. It says the number has to be a 3-digit number. So I can say a number could be 100A plus 10B plus C. This could be a number, but I'm not bothered about the number. I'm bothered about the digits of the number, because it says for which the product of their digits. So what is the product of digits? A into B into C. Yes or no? That is more than 2 and less than 7. And how many such numbers are possible? That is a question. How many such numbers are possible? Now it says the number has to be between 2 and 7. So that means my A into B into C could be 3, it could be 4, it could be 5, it could be 6. Only this condition, because it says less than, not less than or equal to. This is also saying less than. It is not less than or equal to. So that means it is simple. I have A into B into C is equal to 3 into 4 into 3 या 4 या 5 into 6. ठीक है. Now when I look at in my mind that how do I get A into B into C is equal to 2. So multiplication 2 चाहिए. So 2 is a prime number. वो divide होगा नहीं. So it will be only 2 into 1 into 1. These are the ways available. Yes or no? Because 2 is a prime number, it cannot be divided. So that is 3 is a prime number, 5 is a prime number. So sorry, I cannot take 2, I can take 3. So this is 3 into 1 into 1. So that is 3 is a prime number. So I cannot take any other way apart from this. 3 cannot be further divided. So what happens? 3 into 3 1 1. So number क्या हो सकता है? 3 1 1. ठीक है. 1 3 1. Yes or no? Then you have 1 1 3. इस तरीके से नंबर बन सकता है आपका. Yes or no? So these are the varieties of the ways in which we can write down. But how many ways? So we know this 3 1 1. So this is 3 factorial upon 2 factorial. That is the way we can possibly make it. Okay, I'm sure all of you are aware about it. So these are the 3 ways. Okay, so when I take A into B into C, 3 ways. Okay, ठीक है. Now is there any other way? No, this is 3 way. Okay, this is easy for me. Now let me look at 4. How do I get 4? 4 is a possibility as 4 1 1. Okay, or 2 2 1. 2 into 2 into 1 and 4 1 1. I think that is easy for every one of you to understand. Great. Okay, so when I have 4 1 1, so that is also 3 ways. 2 1 1 is also 3 way. So there are total 6 ways. Okay, and when I take 6, 6 can be written as, you can say, 2 into 3 into 1. That is one way. Or another way would be 6 into 1 into 1. Yes or no? So that means this is how many ways? 2 into 3 into 1. That is 3 factorial. 3 factorial makes it to be some around 6. And this is 6 1 1. That will make it to be 3. Okay, so these are 9 ways. Okay, so how many ways? 9, 12, 18, 18 plus 3, total 21 ways. Okay, I think this is easy for all of you to understand, because the problem tells us just putting the number.
बहुत छोटे नंबर दे दिए हमें, मतलब 2 और 7 के बीच के मल्टीप्लीकेशन चाहिए, एंड दे कैन बी फॉर्म्ड इन दिस वे. सो वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिकल क्वेश्चन फॉर अस. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, very interesting function based questions. So look at this question. If f of 5 plus x is equal to f of 5 minus x for every real value of x, ठीक है, उसको 2 मिनट रुक जाइए, समझिए इस लाइन का मतलब क्या होता है. ठीक है, अगर आप इसको समझेंगे नहीं और आगे बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत पड़ेगी. ये सुनो. सो इसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल एक्स, है ना, देयर विल बी, यू कैन से वन वैल्यू. So there will be something like, let's say if I put x equal to 1, so that means f of 5 plus 1 is same as f of 5 minus 1. So this is f of 6 is equal to f of 4. ठीक है, this is the meaning, which means if I take x equal to 2, I can get same stuff, f7 is equal to f3 and so forth. So that means for every value of x, for every value of x, I get this data कि 2, you can say values सेम है फंक्शन की, 2 नंबर पे वैल्यू सेम है. ठीक है, ये बात समझ आई आपको? वेरी गुड. ठीक है, सो दैट मीन्स इफ आई पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, आई कैन गेट दिस. इफ आई पुट x इक्वल टू 2, मैं अंदर डाल दूंगा, आई गेट f ऑफ 7 इज इक्वल टू f ऑफ 3. ठीक है, इफ आई पुट x इक्वल टू 3, आई गेट f ऑफ 8 इज इक्वल टू f ऑफ 2. ऐसे बनता जाएगा. Yes or no? So there will be always symmetry which is happening around 5. 5 के आजू बाजू ये सिमेट्री बनती जाएगी. Yes or no? अब ये सिमेट्री बन रही है, ये हमारे दिमाग में तो बैठ गया. Now we understand this. ठीक है. Now they are saying and f of x is equal to 0 has 4 distinct real roots. So f of x is equal to 0. So when I put f of x equal to 0, it has 4 distinct roots. Okay. So let us say one root is a, है ना. So in another way, what will be the another root? ठीक है ना. What will be the another root? Another root would be matching like this. Okay. So अगर मैं f of, you can say a का कोई वैल्यू ढूंढूंगा, ठीक है, f of a का कोई वैल्यू ढूंढूंगा, ठीक है. So I know f of 5 plus x is equal to f of 5 minus x. Okay, so that means what I get is f of, you can say a minus 5. ठीक है, ये दोनों सेम होंगे. ये सर नो, ये दोनों सेम होंगे, बराबर है. which means अगर a उसका रूट है तो a minus 5 भी रूट है. सिंपल है. ये बात समझ आ रही है आपको? चलो, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, very good. Okay, so in another way, if let's say 5 plus x अगर रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा? 5 minus x. so अगर 5 plus a रूट है तो 5 minus a रूट है उसका. Similarly 5 plus b रूट है उसका, so 5 minus b भी उसका रूट है. ये सुनो, ये इक्वेशन से तो यही समझ में आता है, बराबर है. नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट सम ऑफ द रूट्स. सो if I add all of them, I get 5 plus a plus 5 minus a gets cancelled, 5 plus b plus 5 minus b, so b gets cancelled. I get what? 5 plus 5 plus 5 plus 5, which makes it to be 20. So answer would be 20. Now this is a very interesting mathematical question जहां पे फंक्शन की ये समझ होनी चाहिए. when you got this data, समझ कैसे बनती है? Now when you know f of 5 plus x is equal to f of 5 minus x, that is symmetry. Okay, that symmetry tells कि f of 5 plus a का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू f of 5 minus a का होगा. सिंपल कहानी है. ग्रेट. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. Now very interesting question. ठीक है, a problem in front of us. Viru invested 10,000 rupees at 5% simple annual interest rate. Simple interest rate है, मतलब कैट वाले simple interest का सवाल पूछते हैं, so that gives more confidence. oh ये तो आता है. And exactly after 2 years, Joy invested 8,000 rupees
at 10% simple interest. Okay, 2 साल के बाद जॉय ने इतना पैसा लगाया. How many years after Viru's investment will their balances, that is principal plus accumulated interest, be equal? नोट किया जाए यहां पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल होने की बात हो रही है. नाउ वी नो दैट यू कैन से वीरू के लिए होगा 10,000 प्लस 10,000 इंटू 5% इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी जॉय के होंगे +2 होगा. सो दिस इज n+2 लगा देते अपन, डिवाइडेड बाई 100. ये पैसा इज इक्वल टू जॉय का पैसा. जॉय ने कितना लगाया 8,000, ये सुनो, plus 8,000 into, you can say 10% into n upon 100, and we have to find out how many years after Viru. So we have to find out n+2. Okay, now this I think becomes reasonably easy. चलिए ग्रेट, 8,000 इधर आएगा, so it becomes 2,000. ठीक है, plus, okay, so this is 500 into n+2. this is 8,000 तो यहाँ पे आया तो कट गया. सो दिस इज 80, दिस इज 800 n. ओके, चलो बढ़िया. सो दिस इज 2000 प्लस 500 इंटू एन विच इज 500 n, जो मैं ऑटोमेटिकली उसको बाजू पे ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पे. 800 में से माइनस हो जाएगा. सो दिस विल बी माई 300 n एंड 500 इंटू 2 मेक्स इट टू बी 1000. ये सर नो. सो दोस्तों इसको थोड़ा सा है ना स्टेप बाय स्टेप अगर करते हैं तो पर क्विक करना बनता है. ठीक है, सो देयर बाय दिस इज 300 n, दिस इज 3000. ठीक है, सो 3000 डिवाइड बाय 300 विल मेक इट n इक्वल टू 10 and we have to find out n+2, so that makes it to be 12 years. ठीक है, I think that's very easy. चलिए great. Number 4, a train traveled at 1/3 of its usual speed and hence reached a destination 30 minutes after the scheduled time. Now we all know that speed is equal to distance upon time, and speed and time are inversely proportional. Yes or no? Speed और time inversely proportional है, बराबर है. Which means अगर आपका time बढ़ता है, speed required will be less. So a train is traveling at 1/3 of its usual speed. अगर usual speed ऐसे है तो time required would be t. Now this is you can say 1/3 of this. ठीक है, तो time inverse होगा 1/3 की जगह पे ये हो जाएगा आपका 3t. Yes or no? ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ये ध्यान रखना. अगर मैं बोलूं नॉर्मल टाइम एस है और टाइम रिक्वायर्ड विल बी टी है, ठीक है, सो अगर द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड, द टाइम रिक्वायर्ड विल बी 6/5 ऑफ टी. ओके, दैट इज हाउ इट विल बी प्रेजेंटेड. ये ध्यान रखना, ये आना चाहिए. चलिए ग्रेट, हमारे लिए ये डेटा था. नॉर्मल स्पीड एस, time required would be t. Now the train is traveling at 1/3 of the usual speed. Time required will become 3t, and thereby it is reaching its destination 30 minutes after the scheduled time. What is the scheduled time? T. How much more time it took? ठीक है, how much time it took? 3t. How much more time it took? Because this is more time. 30 मिनट ज्यादा लगा, ऐसा पूछा है ना. ठीक है, सो दिस इज t एंड दिस इज 3t. इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, दैट इज 2t इज इक्वल टू 30. सो टाइम रिक्वायर्ड वुड बी 15 मिनट्स. नॉर्मली ट्रेन को 15 मिनट्स लगता है, इस केस में इसको 45 मिनट लग गया. ओके, ठीक है, चलो ग्रेट. ऑन इट्स रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल एट इट्स यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स. ठीक है, यूजुअल स्पीड में कितना टाइम लेती है पूरा डिस्टेंस काटने में? 15 मिनट. तो 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ठीक है, बहुत ऑब्वियस है. ये सुनो, अगर स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशनशिप या टाइम और डिस्टेंस का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है, ये सुनो, तो 5 मिनट इज 1/3 टाइम. सो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? 1/3. कितना डिस्टेंस बाकी बचा? 2/3 द डिस्टेंस इज लेफ्ट. ओके, बट देन स्टॉप्ड फॉर 4 मिनट्स फॉर इमरजेंसी. 5 मिनट बराबर चली, फिर इमरजेंसी में ब्रेक लगा दी, 4 मिनट रुक गया. ये सुनो, उसको आइडियली और 10 मिनट लगते पहुंच जाता, ये सुनो, पर 4 मिनट चला गया. ये सुनो, ठीक है, द परसेंटेज बाय विच ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड सो एज टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल्ड टाइम इज नियरेस्ट टू. ओके, सो नाउ पहले
ट्रेन के पास 10 मिनट का टाइम अवेलेबल था, 4 मिनट वेस्ट हो गया। ये सुनो, ट्रेन को चलना कितना है, 6 मिनट में अब उसको काम करना है। ये सुनो, पहले कितना करना था, 10 मिनट में। ये सुनो, ठीक है। सो अगर 10 मिनट में उसको डिस्टेंस काटना था, वही डिस्टेंस अब उसको 6 मिनट में काटना है। ये सुनो, पहले उसकी स्पीड कितनी थी, पहले उसकी स्पीड होनी थी 2/3 ऑफ डी, दैट इज अ डिस्टेंस अपॉन 10 का टाइम। अब 2/3 ऑफ डी और टाइम रिक्वायर्ड विल बी 6, ठीक है। दैट्स अ न्यू स्पीड, that's a new speed, but we know speed and time are inversely proportional, ठीक है। So that means the new speed will be 10/6, इतना लगेगा उसको, है ना। 10/6 समझ आया आपको, ठीक है। टाइम मतलब नॉर्मल स्पीड से उसको लगने वाला था 10 का टाइम, ये सुनो, तो 6 के टाइम पे उसको कितनी स्पीड लगेगी, स्पीड और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, ये सुनो, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट न्यू टाइम रिक्वायर्ड, दैट इज अ न्यू स्पीड बाय ओल्ड स्पीड विल बी इनवर्स ऑफ दिस, विच इज 10/6 कर लिया मैंने, यहाँ पे न्यू एस किया ना, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये समझ में आना चाहिए, बट एनीवे, सो नॉर्मल टाइम कितना, दिस इज 10/6। 10/6 का मतलब कितना हो गया, 10/6 इज नथिंग बट यू कैन से 1 + 4/6, 4/6 is 2/3, 2/3 66.66, इतना ज्यादा लगेगा। सो देयरफॉर आंसर वुड बी 67। कंफर्टेबल है, काफी इजी है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे बहुत मजेदार सा क्लू था, ठीक है। स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशनशिप, स्पीड और डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, और उसको यूज करना था, ठीक है। उसने जब पहली बार बोला 1/3 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो हमें लग गया वो 3t टाइम लगाएगा, और उन दोनों का डिफरेंस दिया था 30 मिनट, तो हमने निकाल दिया 2t = 30, सो t = 15 मिनट। सो यूजुअली उसको मतलब 15 मिनट लगता था, वो 5 मिनट चल गई तो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस काट लिया, एंड देन वी कैन अप्लाई आवर मैथमेटिकल ब्रेन। ग्रेट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन लॉग। लॉग के ऊपर काफी अच्छा सवाल। नाउ वी नो लॉग के कुछ फंडामेंटल्स, ठीक है। वी नो लॉग ऑफ a to the base b will be written as log of a to some new base n divided by log of b to some new base n. That's what we can write, ठीक है, as a rule of log. Okay, rule of log इस तरीके से काम करता है। ये सुनो, we know that log is nothing but a to the power b is equal to c अगर लिखा है, so we can convert into a log stating that log of c to the base a is equal to b. In another words, a to the power b is equal to c. आप ऐसा भी कर सकते हो, a to the power b is equal to c, ठीक है। That's how you can write down. Or a to the power b is equal to c is this. So that means 5 cube is equal to 125. I can write down log of 125 to the base 5 is equal to 3. I can write down in this way. Yes or no? Great. चलो ग्रेट। सो I'll write it. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन के लिए लॉग में कोई रूल नहीं है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा था, यहाँ पे 4 दिख रहा था, तो मुझे लगा कि चलो एक काम करता हूँ, log of 5 अपॉन log of 4 कर देता हूँ इसको। दिस इज log of y अपॉन log of 4 करते हैं, इनटू log of √5 अपॉन log of 6 कर देते हैं। log 4 कट गया, ये सनो, ठीक है। वन मोर इंफॉर्मेशन, that log of x to the power a to some base n is written as a times log of x to the base n. Yes or no? So अगर यहाँ पे power a है, so I can take that power आगे और I can do a log x, ठीक है ना। So that means if I have log of √x to the base n, so I can write down 1/2 log of x to the base n, that because root is nothing but power 1/2. Okay, so therefore this is 1/2. So this is log of 5 is equal to log of y upon log of 6 into 1/2 log of 5. log 5 कट गया, यहाँ पे 6 उधर जाएगा, so and 2 भी साथ में जाएगा, so 2 times log of 6 is equal to log of y. So this is nothing but log of 6 square is equal to log of y. So y is equal to 6 square, that is 36. Answer would be 36. Comfortable है? I think that's very easy. Okay, चलिए बढ़ते आगे and we move forward and talk about another equation, ठीक है, which is very crucial, है ना।
देखिए दोस्तों, एक तरीके से क्वेश्चन पूछने के बहुत अच्छे तरीके, है ना, ये है आपके सामने, बहुत ही मजेदार है ना। व्हेन आई सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आई रियली फील हैप्पी कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कैट वाले बनाते हैं, और यहां से ये चेक करने की कोशिश होती है कि क्या बच्चे को कुछ फंडामेंटल पता है या नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे, है ना, देखने में इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, और बोला कि रियल वैल्यूड सॉल्यूशन फॉर दिस, दैट मींस 2 to the power x प्लस 2 to the power minus x इज इक्वल टू 2 माइनस x minus 2 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, नाउ what is 2 to the power x? That is 2 to the power x. What is 2 to the power minus x? This is 1 upon 2 to the power x is equal to 2 minus x minus 2 is to the power 2. Now, when I have converted equation in this format, I cannot solve it directly. ठीक है ना? It becomes really impossible for me to solve because at one go this is 2 to the power x और यहां पे सीधा x के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, पर कैट के अंदर देयर आर स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ यू कैन से कंसेप्ट्स व्हिच यू हैव टू अप्लाई एवरी टाइम। क्या अप्लाई करना है, चलिए ये मैं बताता हूं आपको। सो व्हेनेवर यू हैव यू कैन से समथिंग लाइक y प्लस 1 अपॉन y, अगर ये वैल्यू देके रखी और y इज अ रियल वैल्यू, है ना, y इज अ रियल वैल्यू, ठीक है, और y अगर पॉजिटिव है, सो दिस y प्लस 1 अपॉन y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, हमेशा हमेशा। ठीक है, और अगर y नेगेटिव है, सो y प्लस 1 अपॉन y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। यू वांट टू ट्राई आउट, you want to check it on your own, you can. Okay, so this is derived, है ना, this idea is derived out of arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean, and then in arithmetic mean you take one value as y, other value as 1 upon y, इन दोनों का एवरेज करोगे, ठीक है, ओके, और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, एंड देन यू ट्राई एंड अप्लाई इट हियर, यू गेट दिस डेटा। सही है, ग्रेट। ठीक है, सो इनफैक्ट ये जो इंफॉर्मेशन है वो इसी फॉर्मेट की है, y प्लस 1 अपॉन y ये फॉर्मेट में है। ठीक है, विच मीन्स कि ये वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, सो दैट मीन्स, अब आप देखिए x माइनस 2 जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये सर नो पॉजिटिव हो जाएगा, विच मीन्स यू कैन से ये वैल्यू अगर 2 या 2 से बड़ी है, सो ये वैल्यू मिनिमम क्या होगी, मतलब इसको तो पक्का ही 0 होना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी एनी नंबर। अगर कोई नंबर हुआ तो 2 में से माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 से छोटी हो जाएगी, जो कभी नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं बना जो यू कैन से y प्लस 1 अपॉन y यू कैन से लेस देन 2 दे सके, अगर दोनों पॉजिटिव है तो। ये सुनो, दुनिया में आज तक नंबर नहीं बना। So that means x minus 2 0 होना पड़ेगा। Yes or no? x minus 2 0 कब होगा? When you put x equal to 2. Yes or no? So that makes it to 0. ठीक है, ओके, तो ये 0 हो गया। अब when I put it here 2 to the power 2 plus 1 upon 2 to the power 2, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ये चेक कर रहे हैं हम। सो दिस इज, है ना, वैल्यू क्या हो गया, 2 to the power 2 is 4 plus 1 upon 4, ये कभी 2 होगा क्या, नो, विच मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। व्हेन आई पुट y plus 1 upon y greater than or equal to 2, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो वो जरूरी नहीं है, so that means it is not possible. So there is no root possible when it is positive. So we have to check one more thing, y plus 1 upon y is less than or equal to -2। ठीक है, ओके, सो व्हेन इट इज लेस देन और इक्वल टू -2, अगर मुझे ऐसा करना है, ठीक है, सो हाउ डू आई डू इट, इसकी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू -2 होनी चाहिए, ये सो नो। ठीक है, सो ये -2 कब होगा, जब ये वैल्यू, है ना, दिस वैल्यू इज यू कैन से मिनिमम, है ना, ये मिनिमम आपका 4 होगा। अगर 2
माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर करूंगा, ठीक है, सो ये मिनिमम वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, अगेन से 4 चाहिए, सो आई नीड 2 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है, ओके, सो दैट वे इट बिकम्स, ये -2 राइट हैंड साइड पे जाएगा, ये प्लस, सो 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, सिंपल, ओके, चलो बढ़िया, सो 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 कट गया, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ x इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, विच मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सही है, ग्रेट, ठीक है, सो दिस गिव्स मी दिस इज टेलिंग मी कि अच्छा ये ग्रेटर देन बोला था क्योंकि मैंने इसके साथ कंपेयर किया था, बट आई नीड इक्वल टू, सो आई से x इक्वल टू 0 या तो x इक्वल टू 4, ठीक है, सो इफ आई पुट x इक्वल टू 0, so if I put x equal to 0 here, ठीक है, so 2 to the power x plus 2 to the power minus x, if I am putting x equal to 0, so that makes it 2 to the power 0 plus 2 to the power 0, so that makes it 2, 1 plus 1 is 2, so यहाँ पे मैं डालूंगा 2 minus again से 0 minus 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, so that makes it 2 कितना होगा, 2 minus 2 का स्क्वायर इज 4, है ना, so ये हो जाएगा मेरा एक तरीके से -2, ठीक है, ओके, सो 2 minus 2 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, ये सर नो पॉसिबल नहीं है, मतलब 4 पे भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका 0। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 0 कैसे आया, बिकॉज व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, व्हेन आई पुट x इक्वल टू 2, एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्ट्रेट रोड कनेक्टिंग A and B, okay, car 1 travels from A to B, car 2 travels from B to A, both leaving at the same time, okay, so यहां से A to B जाना है और B to A आना है, कार 1 यहां से जा रही है, कार 2 यहां से जा रही है, दोनों सेम टाइम पे चल रही है, then they meet at some point, they take 45 minutes and 20 minutes respectively to complete their journey, मिलने के बाद A को 45 मिनट लग रहा है और B को again से लग रहा है 20 मिनट का डिस्टेंस काटना है, कार 1 की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, सो कार 2 की स्पीड क्या होगी। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये फॉर्मूला याद रख दिया होगा, क्या फॉर्मूला है, दिस इज अ स्पेशल केस। नाउ व्हाट इज अ स्पेशल केस हियर, लेट मी एक्सप्लेन। Let us say there is A and B. A is moving at a particular speed, B is moving at a particular speed. They meet at a particular point. ठीक है, टोटल डिस्टेंस D है, I don't know कितना है D. So let us assume कि ये डिस्टेंस आपका A है, so ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका D minus A. ठीक है, A की स्पीड A है, B की स्पीड B है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं। तो मैं पहले बताऊंगा कि दोनों, है ना, पहले यहां पे कहीं पे मिले, मिलने के बाद A को ये डिस्टेंस काटने में x मिनट्स लगा, b को रिमेनिंग डिस्टेंस काटने में y मिनट लगा, ये सर नो, ठीक है। तो अब a और b की स्पीड का रेशियो क्या होगा, बहुत इजी है, देख लेते एक बार कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले दोनों मिल रहे हैं, ठीक है भाई, a को पूरा a का डिस्टेंस काटने में टाइम कितना लगेगा, a अपॉन a, b को d माइनस a का डिस्टेंस काटना है विद स्पीड ऑफ b, और दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं और दोनों साथ में मिल रहे हैं, सो दैट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड विल बी दिस, दोनों का सेम होगा, विच मीन्स a बाई बी इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस a। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, ये सर नो। दूसरा इक्वेशन, ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, a को रिमेनिंग डिस्टेंस d माइनस a काटने में, ठीक है, उसको लग रहा है x मिनट, ओके, और b को रिमेनिंग डिस्टेंस काटने में लग रहा है y, ये सर नो। इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर डिवाइड करूंगा, ठीक है, सो व्हाट डू आई गेट x बाई वाई इज इक्वल टू d माइनस a अपॉन a, ठीक है, दैट इज x डिवाइडेड बाई दिस, सो ये हो जाएगा मेरा a अपॉन b, सो d माइनस a अपॉन a, d माइनस a अपॉन a इज b बाई a, है ना, सो दैट इज b बाई a,
so d minus a upon a is taken from first equation, so that becomes b by a, so this becomes b by a ka whole square. So if I want to find out a by b ka square, so that gives me y by x का स्क्वायर रूट. सीधा फॉर्मूला है. आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. इट टेल्स मी कि ये दोनों पहली बार कहीं पे मिलते हैं, उसके बाद इसको टाइम लगा 45 मिनट का, इसको टाइम लगा 20 मिनट का. सो a बाई बी इज अंडर रूट ऑफ 20 बाई 45. देखिएगा ये क्रॉस है ना, y बाई एक्स हो रहा था, x बाई वाई नहीं है. ठीक है, ये हमने x माना था और ये y माना था, और हमारा इक्वेशन आया था y बाई एक्स. इसको गलती मत करना. ओके, सो दिस इज यू कैन से कितने 5 से कटेगा, 5 4 जा 5 9 जा. ठीक है, सो दिस बिकम्स 2 बाई 3 a बाई b. नाउ वी नो a का वैल्यू, सो वी गेट b इज इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू b इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू a. a इज दिस. ठीक है, दिस इज 30. सो कार 2 की स्पीड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, इसको बिल्कुल याद करिएगा ये फॉर्मूला. अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका शॉर्ट आंसर बनने वाला था. दोस्तों ये एक सवाल और ये दूसरा सवाल जो आपको याद रखना था, दैट इज y प्लस 1 अपॉन वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ये बड़े काम के फंडामेंटल्स है, ये आप याद रखोगे तो आपका बड़ा फायदा होगा. क्वेश्चन नंबर 8. Let ABC have 3 positive integers such that sum of A and the mean of B and C is 5. Sum of A plus mean of B and C, mean of B and C is B plus C by 2. इसकी वैल्यू 5 है. ओके, ठीक है, I have to solve an equation then. That's okay. 3 वेरिएबल का इक्वेशन है मेरे पास. In addition, sum of B and mean of this is 7. Then find out what is a plus b. Okay, so there are 3 variables a, b, c, but there are only 2 equations. ठीक है, however they are not asking me to find out exact value of a and b. They are asking me to find out a plus b. ठीक है, चलिए कोई नहीं, let me write it. है ना, I take LCM, so I get what, 2a plus b plus c is equal to 5 2 za 10, and this is 2b plus a plus c is 7 2 za 14. Okay, now look at this very interesting stuff. ठीक है, मुझे c नहीं चाहिए, I am not interested in the c. ठीक है, गेम ये है कि कौन सा बच्चा ये 2 इक्वेशंस को जल्दी सॉल्व करके a प्लस बी की वैल्यू निकाल पाएगा. ठीक है, उसके ऊपर अब गेम आ गया. नाउ दिस इज इजी. अब इससे ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है. आई डोंट वांट सी, सो आई जस्ट सब्ट्रैक्ट इट. है ना, मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करूं. सो व्हेन आई हैव 2b माइनस b, इट बिकम्स b a माइनस 2a, सो दैट इज माइनस a, और c चला गया. सो आई एम लेफ्ट विथ व्हाट, b माइनस a इज इक्वल टू 4. सही है, 14 माइनस 10 इज 4. सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 4a. इजी. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, आई नो ABC आर पॉजिटिव इंटीजर्स. That's a very interesting constraining factor. They are not real numbers. They are integers. Numbers hai. So when I put a plus b here, so when I put a plus b, I know a, I know b is 4a. So you can say a plus b is 5a. A integer hai, which means iska sum must be in the multiple of 5. Yes or no? And there is only one option which is multiple of 5, which is this. खत्म. दैट्स माई आंसर. इजी, पक्का है ना. क्या मजेदार था ना, कितना मजेदार सा तरीका था कि भैया हमने देखा इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. वी कांट गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू, ये तो पक्का है, बट दे आर नॉट आस्किंग एग्जैक्ट वैल्यू. सिंपल है. यस और नो? ग्रेट. वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9. ओप्स, इंटरेस्टिंग वन. x इज इक्वल टू फलाना फलाना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 64. नाउ व्हेन आई सी दिस 4096, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है. 4096 और 64 का कोई रिलेशन होना चाहिए.
तभी ऐसा दिया गया होगा, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। ये सुनो 4096 मुझे याद है 2 की पावर 10 है ना, इज इक्वल टू 1024। सो देयरफॉर 2 की पावर 11 इज 2048 एंड 2 की पावर 12 इज इक्वल टू 4096। ये मुझे याद है ना। साथ में मुझे ये भी पता है कि 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। सो इन अनदर वे 64 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4096 है ना। या तो आपको डायरेक्टली ये पता हो या आप ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओ मन में, आपकी मर्जी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज 64 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4096। सो x इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर टू द पावर 7 प्लस 4√3। नाउ क्यों मैंने ऐसे किया? बिकॉज आई हैव टू गेट 64 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ से x। सो सब कुछ 64 के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और क्या, ठीक है, चलो बढ़िया। सो दिस इज 64 की पावर 2 इंटू 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू एक्स। सो व्हाट इज माई 64? 64 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 इंटू 7 प्लस 4√3। ये इन्होंने मुझे दिया है, सही है। नाउ द क्वेश्चन बिकम सो इजी। इस स्टेप के बाद व्हाट आई हैव टू सी इज, मैंने सर्ड में सीखा था सर्ड्स। What are the surds? Surds are irrational roots of rational number. So like √3 is a surd. So when I have a surd like you can say 7 plus √3, अगर डिनोमिनेटर में, so I have to convert this into 7 minus 4√3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 7 minus 4√3 के साथ। So when I multiply by the same number है ना, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, so effectively I am multiplying a number by 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने में नंबर चेंज नहीं होता है। So which I can do. So what happens यहाँ पे a plus b, a minus b होगा, बराबर है। So this becomes a square minus b square। तो मेरा कहानी बहुत इजी हो जाएगा। This is a square minus b square, 7 square minus 4√3 का होल स्क्वायर और ऊपर हो गया 7 minus 4√3। तो आप देख सकते हैं 7 का स्क्वायर इज 49, 4√3, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 into √3 का स्क्वायर इज 3, so that is 16 3 is 48, 49 minus 48 is 1, so this becomes 1. Yes or no? So my numerator is 7 minus 4√3. Easy, great. So this is x 1/2 वैसा का वैसा, ठीक है, और ये हो गया मेरा 7 minus 4√3. So this is nothing but x की पावर 7/2 minus 4√3/2. सही है, ग्रेट। सो इन अनदर वे दिस इज x to the power 7/2 माइनस है, तो माइनस को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं, ठीक है, सो आई एम लेफ्ट विथ x की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 4√3/2। सो ये 2 कट गया, x की पावर 7/2 डिवाइड बाई x की पावर 2√3। आंसर होना चाहिए मेरा C। कंफर्टेबल है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर यू अंडरस्टूड दिस। ये सर नो है ना, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। मैथमेटिकली मैं देखूंगा तो मुझे 4096 को 64 के टर्म में कन्वर्ट करना था, फिर उसके बाद सर्ड का फंडा अप्लाई करना था। सो दिस इज अ क्वेश्चन डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑफ सर्ड, बट एट द सेम टाइम दिस इज इन्वॉल्विंग अ कंसेप्ट ऑफ पावर्स। पावर्स को कैसे प्रेजेंट करते हो वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। कमिंग टू नंबर 10, द मीन that is average of all 4-digit even natural numbers of the form of AA, BB, where A is greater than 0 is what? What is the meaning of this? Average चाहिए मुझे, I need mean, ठीक है। किसका चाहिए? 4 डिजिट के इवन नेचुरल नंबर। कितने हैं ऐसे? बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, पहले क्या होना चाहिए? 4 डिजिट का। A 0 है नहीं, तभी तो 4 डिजिट बनेगा। ये सर नो। सो AA BB कैसे बन सकता है? 1 1 इवन नंबर चाहिए तो 0 0 होगा, सही है, ओके। फिर क्या होगा? 1 1 2 2, 1 1 4 4, 1 1 6 6, 1 1 8 8। ये हो गए मेरे इवन डिजिट नंबर। ये सर नो, 4 डिजिट के इवन नंबर्स विच इज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ AA BB, है ना। पर मुझे कौन से चाहिए? इतने ही चलेंगे नहीं, ऑल नंबर।
all number, which means I can start with 2200, 2222, and so on and so forth. I can start with what? 3300, 3322, and so on and so forth. Yes or no? I can start with 44 up to कहां तक जाऊंगा? 999. Yes or no? 9900, 9922, 9944, 9966, 9988, ऐसे करके मैं जाऊंगा. सही बात है. इन सबका मुझे एडिशन चाहिए. सही बात है. अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इंडिविजुअली यहाँ पे एडिशन करना चाहूँ, 11 से 99 का यहाँ पे सम चाहिए. ये सर नो. फिर यहाँ पे भी 11 to 99 का सम, फिर यहाँ पे 11 to 99 का सम, यहाँ से 11 to 99 का सम, यहाँ से 11 to 99 का सम. ये सर नो. 11 to 99 का सम 11 प्लस 22 प्लस 33 अप टू 99. ये सम मुझे कितनी बार चाहिए? 1 2 3 4 5 बार चाहिए. अच्छा, उसके पीछे क्या है? 0 है. हाँ, सो मल्टीप्लाइड बाय 100. सही है. पक्का. चलो बढ़िया. अब यहां तो 0 था इस केस में. अब यहां पे क्या चाहिए मेरे को? 22 फिर 44. 22 प्लस 44 प्लस 66 प्लस 88 का सम. ठीक है ना. मुझे यहां पे कितनी बार चाहिए? 22 चाहिए मुझे 1 से 9 तक. ये सर नो. 1 से 9 तक कितनी बार होगा? 9 बार होगा. 44 कितनी बार होगा? 9 बार. 66 9 बार होगा. ये हो गया सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 5 और ये 1 से लेकर 9 तक 9 5 45 नंबर है. तो इनका एडिशन डिवाइडेड बाय 45, दैट इज द मीन. सही है. चलो बढ़िया. ठीक है. हाउ डू वी डू दिस? वेरी सिंपल है ना. 11 से 99 करना है अपने को. 11 कॉमन निकाल दूं तो 5 इंटू 11 कॉमन, तो फिर क्या बचेगा? ये 1 2 3 4 अप टू 9. 1 से 9 का सम. 1 से 9 का सम क्या होता है? 9 इंटू 10/2 विच इज 45. आपको याद होना चाहिए ये 45 होता है. ठीक है. सो ये 11 कॉमन निकाल दिया. फिर ये 45 इंटू 100 है प्लस, ठीक है, से ये 9 है. 9 में से हमने कॉमन क्या निकाल दिया? 22 कॉमन निकाल देते हैं. सो ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये 4 मिलेगा. 4 प्लस 3 6, सॉरी 7, 7 प्लस 3 10. सो 9 इंटू 22 इंटू 10 अपॉन 45. ठीक है. इजी. चलो बढ़िया. अब इसको फटाफट कैलकुलेट करना, तो मैं कैसे करूंगा पता है? पहले 45 यहां काट दिया. सो आई एम गेटिंग 55. सो दिस इज 55 एंड 00. ठीक है. और यहां पे जाएगा 9 5 एंड 5 2 सो दैट मेक्स इट 244. सो आंसर हो गया 55 44. ठीक है. आंसर हो गया 55 44. मैंने ये कैसे किया? आई एम सब्ट्रैक्टिंग, आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग ऑल ऑफ देम एंड देन वापस 45 से डिवाइड कर रहा हूं. ऐसा नहीं कर रहा हूं. आई एम टेकिंग इंडिविजुअल नंबर. इसको 45 से डिवाइड किया, फिर इसको 45 से डिवाइड किया, और फाइनली छोटे नंबरों को मैंने ऐड किया. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है दोस्तों, आपको सीखना ऐसी सब चीजें जो स्टेप्स हो रहे हैं, उन स्टेप्स को सीखना. ठीक है. क्योंकि जब आप स्टेप सीखते हो तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे बढ़ जाते हो. ठीक है. चलिए ग्रेट दोस्तों. सो दिस आर द 10 क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड. आई विल बी ब्रिंगिंग द नेक्स्ट 10, ठीक है, फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज बाय टुमारो. Okay, great. Thank you very much for coming here and watching this. Don't miss out to like this video. In fact, you like it. आपको genuinely पसंद आया है तो इसको बिल्कुल लाइक करिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्रो टैलेंट को ज्वाइन भी करिएगा. ओके, थैंक यू. हैव अ गुड डे.